Shri Abhi Ranjan Biswas ji, please not the placard behind. Shri Biswas ji, this is not the way. Please don't carry the placard there. Shri Biswas ji, the placard is not required there. Please. Please. Please don't show the placard. That's not correct. That's not right. Please, Biswas ji. अब इसका अर्थ है Please. Please. इस दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई नहीं है और पैगंबर उसका मोहम्मद है। Please. यह देश Please. निवेदन कर रहा था कि Please. Please. हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं अथवा विश्व में विभिन्न आतंकवादी घटनाओं के कारण जो काल के गाल में समाये हैं, उनका अपराध क्या था? उनका अपराध कुछ नहीं था। उनका अपराध केवल इतना था कि वो अपने विश्वास, अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन इस दुनिया में एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि उनका ही विश्वास सर्वोपरि है। वो नस्लीय श्रेष्ठता के उपासक है। वो ये मानते हैं कि उनके विश्वास के अतिरिक्त इस दुनिया में किसी दूसरे विश्वास को नहीं माना जाना चाहिए और जो उनसे अलग राय रखते हैं उनको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। उनकी सुबह ही ला से होती है। तो प्रारंभ में ही वो सबसे पहला जो वाक्य कहते हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि इस दुनिया में केवल एक ही है और वह अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है और पैगंबर उसका मोहम्मद है। अब अल्लाह के अतिरिक्त अगर किसी का कोई विश्वास है, अल्लाह के अतिरिक्त अगर कोई किसी उपासना पद्धति को मानता है तो उनकी नज़र में वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। यही अपराध है उन लोगों का जो विभिन्न आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं। यही अपराध है उन लोगों का जो विभिन्न आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं। जो मध्य एशिया में कुर्द हैं, उनकी जो हत्याएं हुई हैं, उनकी हत्याएं केवल इसी अपराध के लिए हुई हैं कि उनकी जीवन पद्धति अलग है। I'm listening. Please. उनका विश्वास अलग है। I'm listening. I'm मैं अपने listening. विपक्षी One साथियों second. One second. Point of order. One second. Okay. Please. Point of order. Mane Director ji, point of order. You see, I'm agreeing with you, and you think I'm fighting with you, sir. Point of order. I'm referring. You said something. I'm agreeing with you. I don't Please. want to fight with you. 235, sub-rule 7. 235, sub-rule 7 says. Please, Derek. I'm giving you the point. Yeah, make your point. Make your point. 235, sub-rule 7 says. Please. Rule. Please. No counter. No commentaries. Sir. Yeah, please. Yeah. I'm on your side, you think I'm not. So rule 235, sub-rule 7 says, and I quote, rules to be observed in the council. A member shall keep his usual seat while addressing the council. Sir, I would request you on this rule, you please check the video footage today from 2:02 to 2:06, 4 minutes and 10 seconds. One member spoke today without your permission from outside his seat. His seat is in the first row, second. The leader of the house went to the fourth row and spoke. How did you allow this, sir? We have It's the noted point it. of order, I have sir. noted it. We will. How did you allow Right. this? You're talking about. Please. You're talking about our members. Please. She's saying. Please. No, I cannot keep on taking points of order. कई सारे points of order आ चुके. 1 second. श्री भूपेंद्र यादव जी. Please sit.
Please sit. Complete, yeah. If you, I will read out rule number 110, scope of debate. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submissions of arguments either in support of the bill or for the rejection of the bill. For the last 5 minutes, the honorable member, not now, but previously when the House was adjourned, was speaking neither on the merits of the bill nor on the provisions of the bill. He was speaking only and only against the member. We'll look into it. He has been. I heard you. You agree with me? I heard you. Let me expunge. I heard you. Okay. Please, Shri Singh. Please, Shri Singh. अपनी सदस्य को बता देना चाहता हूं कि अभी तक मैंने जो विषय प्रस्तुत किया है, Please, no cross questions. बिल के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, इस बिल की आवश्यकता क्यों है, ये बिल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को मैंने स्पष्ट किया है विभिन्न घटनाओं के द्वारा। माननीय सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये वो देश है जिसने 5 युद्धों को झेला है। हमारे पड़ोस में 2 देश ऐसे जिनके पास परमाणु बम है। दुनिया के अनेक आतंकवादी संगठन, दुनिया के अनेक देश ये परमाणु तकनीक प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जैविक हथियार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, रासायनिक हथियार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए ये बिल जरूरी है। और इस बिल की आवश्यकता पर बल देने के लिए इसकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में मैंने इन सारी घटनाओं का उल्लेख किया है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इसी देश में एक ऐसी विचारधारा भी है जिसको नक्सलवाद कहते हैं, और नक्सलवादियों का ना तो भारत के संविधान में विश्वास है, न भारत के विधान में विश्वास है, न भारत की परंपरा में विश्वास है, न भारत की संस्कृति में विश्वास है। और वो अगर उनका बस चले, अगर उनके पास ऐसे घातक हथियार आ जाए तो एक दिन के अंदर ही इस भारत की सारी व्यवस्था को तहस नहस करना चाहते हैं। इसलिए ये बिल बहुत ही आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक जिम्मेवार देश है। दुनिया के पटल पर भारत की गिनती एक बहुत मजबूत और बहुत जिम्मेदार देश के रूप में होती है। दुनिया भारत की ओर देखती है कि भारत किसी विषय के संदर्भ में अपने क्या विचार रखता है, भारत क्या पहल करता है, और भारत ने समय समय पर अपनी जिम्मेदारी का परिचय भी दिया है। इस विषय पर भारत 2002 से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में पहल करता रहा है, और भारत की पहल पर ही 2004 में संयुक्त राष्ट्र संघ पे एक संकल्प पारित हुआ जिसका क्रमांक 1540 था। उस संकल्प में यही कहा गया था कि ये जैविक हथियार, परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार, इनके प्रसार को रोकने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं अपने अपने देशों के अंदर कानून बनाएं, और उसका पालन करते हुए वर्ष 2005 में भारत ने इस तरीके का कानून बनाया था। लेकिन उस कानून में कुछ खामियां रह गई थी, उस कानून में कुछ कमियां रह गई थी, और उस कमी को सुधारने के लिए ही ये संशोधन बिल लेके आया गया है। उस कानून में क्या खामियां रह गई थी? 2005 में जो कानून आया था, उस कानून में परमाणु हथियार के निर्माण पर, परमाणु हथियार के आपूर्ति पर, परमाणु हथियार के परिवहन पर, जैविक हथियार, रासायनिक हथियारों के परिवहन पर, इस पर तो प्रतिबंध का प्रावधान था, लेकिन इसके जो वित्तीय पहलू हैं उसको नजरअंदाज कर दिया गया था। परमाणु हथियार, जैविक हथियार, रासायनिक हथियार आसमान से नहीं गिरते हैं। उनको बनाने के लिए वित्तीय आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, कहीं न कहीं से धन की आपूर्ति होती है। जब तक आप उस धन के स्रोत को नहीं बंद करेंगे, धन के स्रोत को जब तक नहीं समाप्त करेंगे, तब तक आप इनके निर्माण को, इनके प्रसार को, इनके परिवहन को नहीं रोक सकते। और इसीलिए ये जो संशोधन विधेयक आया है, इसी संदर्भ में आया है कि जो कमी 2005 के कानून में रह गई थी, उस कमी की पूर्ति किया जाए। और मैं माननीय विदेश मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं
कि उन्होंने बहुत सामयिक तौर पर इस विषय को यहाँ पर इस बिल के माध्यम से रखा है। सारे वित्तीय प्रावधान जो इस तरीके का परमाणु हथियारों के निर्माण में, परिवहन में अथवा तकनीकी के ट्रांसफर में भी जो वित्तीय स्रोतों के माध्यम से धन उपलब्ध होता है, उसके लिए इस कानून में सजा का प्रावधान किया गया है, संपत्ति को फ्रीज करने का प्रावधान किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से काफी हद तक इसकी रोकथाम में हमको मदद मिलेगी। भारत ऐसा देश है तो जैविक हथियारों की जो संधि है 1972 में हुई है, जो रासायनिक हथियारों की जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1993 में हुई है, इन सारी संधियों में भारत शामिल है। 1968 की परमाणु प्रचार की संधि में भारत नहीं शामिल है, लेकिन भारत उसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन दुनिया के अन्य देश एक विशेष योजना के तहत, विशेश षड्यंत्र के तहत शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। सभापति महोदय, ये कानून बहुत आवश्यक है, बहुत सामयिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान हमारे विपक्षी साथियों को भी सद्बुद्धि दे, वो भी आगे आए और इसका समर्थन करें। ये आज की आवश्यकता है, देश के लिए आवश्यक है, दुनिया के लिए आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।